ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی لاڈلے اور پیارے صحابی ہیں. شروع سے ہی ابو ذر غفاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی میں بات کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے علاقے واپس چلے جاؤ، جب سنو کہ ہم غالب آ گئے ہیں تو پھر تشریف لے آنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سچا دین ہے، یہ ان کو بتانا چاہیے. آئے اور بیت اللہ میں آ کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو دعوت دی. انہوں نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. کسی نے آ کے جان چھڑائی تو دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں. پھر کہتے ہیں یہ سچا دین ہے، اس کی دعوت دینی چاہیے. پھر مار کھائی. تیسرے دن اسی طرح پھر مار کھائی تو آپ نے فرمایا آپ چلے جائیں. تو پھر ابو ذر غفاری اپنے علاقے چلے گئے. ادھر جا کے اپنے علاقے والوں کو ایسی دعوت دی، جو بھی اللہ کے دین کے لیے مار کھاتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ان کی دعوت پہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا تھا اما الغفار فقد غفر اللہ لہا. دنیا میں صرف ایک خاندان، ایک قبیلہ ایسا ہے جس سارے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ سیدنا ابو ذر غفاری کا قبیلہ غفار ہے، اور یہ اس قبیلے کے سردار ہیں. ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب سوال کر دیا. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، کہ آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے؟ آپ کو یقین کب ہوا کہ جو آخری پیغمبر آنا ہے وہ اللہ نے اس رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے؟ یہ آپ کو یقین کب آ گیا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ملکین، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا. ایک فرشتہ بین السماء والارض، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر گیا اور اس کے ہاتھ میں ترازو بھی تھا، اور دوسرا فرشتہ زمین پہ آ گیا. اوپر والے نے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس آپ کھڑے ہیں؟ کیا یہ وہی ذات ہے؟ نیچے والے فرشتے نے کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے. پھر اوپر والے نے کہا پھر ان کو اٹھاؤ، زنہ برجل، ان کا وزن کرو اور ان کے مقابلے میں ایک آدمی کو تولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ترازو میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو رکھا گیا. فرجحت علیہ، تو میرا وزن بھاری رہا. پھر فرشتہ بولا زنہ بعشر، ان کو 10 کے مقابلے میں تولو. 10 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا.
फिर फरिश्ता बोला ज़िनहु बिमिअतिन, अब इनको 100 के मुकाबले में तोलो। 100 के मुकाबले में आपको तोला गया। आप फरमाते हैं फरजहतु अलल मिअति, 100 के मुकाबले में भी मेरा वजन भारी रहा। फिर फरिश्ता बोला ज़िनहु बिअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। फिर 1000 को पलड़े में रखा गया और तराजू भर गया, और मुझे अकेले को दूसरे पलड़े में रख के 1000 के मुकाबले में तोला गया। फरजहतु अलल अल्फी, 1000 के मुकाबले में भी मेरा वजन भारी रहा। तो फिर फरिश्ते ने फैसला कर दिया कि कब तक इनको तोलते रहोगे। लौ वज़िनतहु बिउम्मतिही लरजहहा, अगर इनका वज़न पूरी इंसानियत, पूरी उम्मत से भी कर दो तो इनका वज़न फिर भी भारी रहेगा। कितनी अजीम बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। लेकिन याद रखिए, जो पिछले मौजू से हमारे बात ताल्लुक़ रखती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो वज़न है, ये सिर्फ आपकी ज़ात का ही नहीं। जिस तरह आपकी ज़ात सबसे भारी है, आपकी ज़ात का वज़न सबसे भारी है, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का वज़न भी सबसे भारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का वज़न किसी का मोहताज नहीं कि जिस पलड़े में आप हैं तो आपके पलड़े में किसी फरिश्ते को रखा जाए तो आपका वज़न भारी हो गया। जिस पलड़े में आप हैं उस तराजू में किसी पैगंबर को रख दिया गया तो आपका वजन भारी हो गया। जिस तराजू में आप हैं उस तराजू में किसी अल्लाह के वली को रखा गया तो आपका वजन भारी हो गया। नहीं, आप अपने वजन के लिहाज से किसी के मोहताज नहीं। ये अल्लाह पाक ने आपको ही शान दी है। आप वजन के लिहाज से जिस तरह किसी के मोहताज नहीं हैं, इसी तरह आप बात के लिहाज से भी किसी के मोहताज नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अगर तोला जाए सारे सहाबा से, एक सहाबी नहीं, सारे सहाबा से, सारे औलिया से, सारे इमामों से तोल दिया जाए, और मैं ये भी कहूं आपकी बात को सारे पैगंबरों की बातों से तोल दिया जाए तो मेरे महबूब पैगंबर की बात का वजन सबसे ज्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की शान भी यही है। अल्लाह पाक ने आपको मुकाम दिया है। अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ने कसमें उठाई है, मुझे सितारों की कसम है, जो सितारे जमीन से कई गुना बड़े हैं। अल्लाह ने सितारों की कसम उठा के कहा है कायनात के लोगों, मेरे पैगंबर की बात का वजन भी यही है, क्योंकि तुम सारे अपनी मर्जी से बोलते हो। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बात करते, जब बोलते हैं अल्लाह की वही से बात करते हैं। यह आपकी बात का वजन है। अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है। अल्लाह कहता है मेरे महबूब पैगंबर की बात के वजन को समझो। आपकी बात का वजन ये है वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अल्लाह कहता है मेरा महबूब पैगंबर अपनी मर्जी नहीं करता। अगर मेरे हबीब अपनी मर्जी से 29वां पारा है, एक बात भी अपनी तरफ से हमारे दीन में शामिल कर देते तो अल्लाह कहता है हम दाएं हाथ से पकड़ के इनकी गर्दन काट देते। हमने अपने पैगंबर को जिंदा नहीं छोड़ना था। जितना अल्लाह की बात का वजन है उतना ही मेरे पैगंबर की बात का वजन है। अल्लाह
اور ہمارے محبوب پیغمبر کی دونوں ذاتیں علیحدہ ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں، اپنی طرف سے تو نہیں، اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے میرے پیغمبر کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس طرح قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، ایسے ہی میرے محبوب پیغمبر کی حدیثیں، آپ کے فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی وحی بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اور حدیث پاک وحی تو اللہ کی ہے لیکن الفاظ ہمارے محبوب پیغمبر کے ہیں۔ وزن میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی، اس طرح نبی علیہ السلام کے فرامین بھی اللہ کی وحی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بستی بنو قریظہ پہ حملہ کیا تو آپ نے نا جاتے ہی بستی کے سائیڈ پہ جو درخت تھے آپ نے فرمایا ان کو اکھیڑ دو، کاٹ دو۔ صحابہ نے وہ کھجوروں کے درخت کاٹ دیے۔ ایک طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا ان درختوں کو رہنے دو۔ جب درخت کٹ گئے تو کئی باتیں اٹھی کہ یہودیوں کا قصور ہے تو درختوں کا کیا قصور ہے، اور وہ بھی پھلدار درخت، کھجوروں کو کیوں اکھیڑ دیا گیا ہے؟ ہم نے اس بستی کو فتح کرنا تھا تو یہ درخت ہمارے کام آنے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آرڈر بڑا عجیب دیے۔ جب صحابہ میں یہ باتیں اٹھنے لگی، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، 28واں پارہ۔ اللہ کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کی جماعت تم نے پریشان نہیں ہونا، جتنے درخت تم نے کاٹ دیے ہیں، عربی دان لوگ جانتے ہیں ادھر ماضی کا صیغہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ آیت اس وقت اتری جب درخت کاٹ چکے تھے۔ اللہ نے کہا صحابہ جو تم نے درخت کاٹے، جو درخت تم نے چھوڑے ہیں، ان کو کاٹنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا، ان کو چھوڑنے کا حکم بھی میں نے ہی دیا تھا۔ اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں ہے تو کاٹنے کا حکم کہاں ہے، چھوڑنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن بھی اللہ کی وحی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی وحی ہے۔ ایک یہودی آیا مسلم شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا جئتو کا اسألو کا، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سوال وہ ہیں جن کے جوابات پیغمبر کے علاوہ کسی کو علم میں نہیں ہو سکتے۔ وہ سوالات میں لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینفعک بہن، اگر میں جواب دے دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سن لوں گا، اسمع باذنی، بڑا سخت یہودی تھا، سن لوں گا، میرے کان تو سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے 6 سوالات کیے۔ وہ سوال اور جواب مسلم شریف میں موجود ہیں۔ جب سوال کے جواب ہو چکے تو اس یہودی نے کہا لقد صدقت وانک لنبی، آپ نے جواب سارے ٹھیک دیے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لقد سألنی ھذا عن الذی سألنی ولیس لی علم بشیء حتی اتانی اللہ بہ۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، اس یہودی نے مجھ سے جتنے سوال کیے مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا، تو ہوا کیا، ادھر سے یہ سوال کرتا رہا، ادھر سے اللہ مجھے جواب بتاتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ جواب اب قرآن میں تو نہیں ہے، وہ حدیث پاک میں۔
कुरान भी अल्लाह की वही है और हदीस भी अल्लाह की वही है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहते हैं मैं मुसलमान होना तो चाहता हूं लेकिन मेरे सवालात हैं, उनका जवाब दीजिए। आपने जवाब दिया, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बुखारी शरीफ में है, आपने फरमाया है अब्दुल्ला अखबरनी बिहिन्ना जिब्रील आनिफा, जो तुम सवाल किए हैं ना, मुझे जवाब नहीं आता था, इन सवालों के जवाब अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास लेकर आया है। जिब्रील क्या लेकर आता है? अल्लाह की वही लेकर आता है। तो बात को समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जैसा वजन है वैसा ही आपकी बात का वजन है। आपकी बात के पुख्ता होने के लिए आपकी बात किसी की मोहताज नहीं। अबू बकर सिद्दीक माने तो आपकी बात का वजन है, उमर फारूक माने तो आपकी बात का वजन है नहीं, सैयदना उस्मान माने ही तो आपकी बात का वजन है, सैयदना अली पाक माने ही तो आपकी बात का वजन है नहीं। सबकी बातों का वजन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से जब मिल जाती है, आपकी बात से सबको वजन मिलता है और आपकी बात के वजन के लिए किसी के मोहताज की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और अंदाज से समझाता हूँ। मुस्लिम शरीफ में सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, बैठे हुए सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, हदीस सुनाई कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन, शर्मो हया जब किसी बंदे में आ जाए तो वो ये शर्मो हया सारे का सारा खैर ही है। वो घर खैर से भर जाते हैं जिस घर में शर्मो हया हो, जिस बेटी में शर्मो हया हो उसी में खैर है, जिस बेटे में शर्मो हया रहे उसी में खैर है। एक ताबी मजलिस में बैठा हुआ था, उसने कहा इन्ना लनजिदु हाजा फिल हिकमा, हिकमत की किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत नहीं की, उसने तईद की है कि बाज हिकमत की किताबें भी यही बताती हैं कि शर्मो हया में खैर है। सहाबी रसूल सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला गुस्से में आ गए, इहमर्रत वजहुहु, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। कहा तुझे हया नहीं आती? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं और तू कहता है हिकमत की किताबों में भी ये लिखा। आप जरा गहराई में समझने की कोशिश करें। मैं एक बात कर देता हूं, भाई खाने से पहले ना पानी पी लेना चाहिए। तो आप में से को कहता है बिल्कुल फलां हकीम भी ऐसे कहता है, बिल्कुल ठीक है, हकीम की बात आ गई तो मेरी बात की तईद हो गई और मेरी बात और मजबूत हो गई, आपको और ज्यादा यकीन हो जाएगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी हिकमत की जरूरत नहीं कि भला हकीम माने ही तो इसलिए गुस्से में आ गए, तुझे शर्म नहीं आती, मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाता हूं और तू हकीमों की बात करता है। मुझे माफ कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस किसी दरवाजे की मोहताज नहीं कि फलां इमाम माने, फलां बुजुर्ग माने ही तो आपकी हदीस से पाक का वजन है। नहीं, आपकी बात का सबसे ज्यादा वजन है, किसी की बात का वजन नहीं आपके मुकाबले में। आपकी बात को तोलो किसी सहाबी, किसी अमीर, किसी इमाम के मुकाबले में, तो वजन किसका ज्यादा है? नबी अलैहिस्सलाम की बात का। सहीहुल बुखारी में आज ही मैं पढ़ रहा था, अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, 3 जगह बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, फरमाते हैं अम्मर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिनल अंसार, आपने एक अंसारी सहाबी को अमीर मुकर्रर कर दिया। अब मुझे बताओ, किसी को अमीर हम बनाएं, किसी को इमाम कोई बनाए और किसी को इमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दें, तो शान किसकी ज्यादा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अमीर बना दिया, अमीर बनाया, चले गए। अमीर साहब को रास्ते में गुस्सा आ गया, खा लकड़ियां इकट्ठी करो।
अमीर नबी अलैहिस्सलाम ने बनाया है। सारे सहाबा लकड़ी इकट्ठी करने में लग गए, लकड़ी इकट्ठी हो गई। खाफाऊ का दो, इसको आग लगा दो। भाई अगर लकड़ी इकट्ठी करनी तो आग लगाने का क्या मतलब? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने अमीर बनाया है, इसकी इताअत है। लकड़ियों को आग लगा दी गई। अब अमीर साहब ने कहा तुम सारे इसमें छलांगे लगा दो। ये लकड़ियां भी तुम्हारे लिए इकट्ठी हुई है, आग भी तुम्हारे लिए लगाई गई है, तुम सारे इसमें आग लगा दो। अब इसको मैं एक मिसाल से समझाऊं। धुंध वाला मौसम आपने देखा है, हाँ? एक बस वाला आगे जा रहा है और हम धुंध के मौसम में उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, और उसने कहीं जाके खेतों में बस उतार दी है। खेतों में जब उसने उतार दिए तो आप क्या करेंगे? बस वाला जो ड्राइवर है ये तो बड़ा समझदार ड्राइवर होता है, इसने अगर नीचे उतारी है तो कोई हिकमत होगी, मुझे भी उतार देनी चाहिए। क्या आप भी गंदम में, फसलों में अपनी गाड़ी उतार देंगे? नहीं भाई, हम लाहौर जाना चाहते हैं, कहीं इधर ही रात नहीं गुजारना चाहते। तुम्हारे पीछे हम चलते हैं। अगर तुम लाहौर की सड़क पे रहते, जब तुम उतर गए हमारा तुम्हारा साथ छूट गया, हम साथ हैं, पीछे पीछे हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे तुम रहते, जब अल्लाह के पैगंबर के रास्ते को तुमने छोड़ दिया है तो हमने तुमको छोड़ दिया है। कहा इसमें छलांगे लगाओ, कहा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी से मना फरमाया है, अपने आप को हलाकत में डालने से मना फरमाया है। आपका अमीर साहब ये आर्डर अल्लाह के पैगंबर के आर्डर से टकरा गए। अब आपकी बात का वजन नहीं रहा, वजन किन की बात का है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का। आग बुझ गई, गुस्सा ठंडा हो गया, खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं पास हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा वाक़या सुनाया गया। आपने क्या तबसरा किया? बुखारी शरीफ खोलो, आपने फरमाया लौ दखलूहा लकानू फीहा अबदा। आप फरमाते हैं मेरे बनाए हुए इमाम की वो बात जो मुझसे टकरा गई, अगर तुम में से कोई ये बात मान के आग में छलांग लगा देता तो क़यामत तक वो आग में ही जलता रहता। सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल ने उसको अमीर बनाया है, इनके पास कोई दलील होगी, इनके पास को वही पहुंची होगी? नहीं, जब तुम्हारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई है तो हदीस से पाक का वजन है। सबकी शानें अपनी जगह, सबके मुकाम अपनी जगह। सहीहुल बुखारी देख लीजिए, यमन की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना के भेजा, चले गए। पीछे से नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल को भी भेज दिया। चंद महीनों के बाद मुआज़ इब्न जबल भी चले गए। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला के पास जब पहुंचे, सहीहुल बुखारी सुप्रीम कोर्ट, इमाम किसने बनाया? अल्लाह के पैगंबर ने। अबू मूसा अशअरी के पास जब पहुंचे, देखा उनके पास एक आदमी है जिसको जंजीरों से बांधा हुआ है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला जाते ही पूछते हैं मा बालू, इस आदमी को क्या है, इसको क्यों बांधा हुआ है? कहा काना यहूदियन फ़अस्लमा सुम्मा तहव्वदा, ये यहूदी था, इसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद ये फिर मुर्तद हो गया, फिर दोबारा यहूदी हो गया। कहा तो तुमने इसको बांध रखा है, ये तेरा फैसला है। कज़ाउल्लाहि व रसूलिही मन बद्दल दीनहु फक़्तुलू, मेरे पैगंबर का फैसला तो ये है जो दीन बदल दे, मुर्तद हो जाए, उसको कत्ल कर दो, तुमने बांध रखा है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आओ बैठो तो सही।
बैठ के बात करते हैं। सहीहुल बुखारी सुप्रीम कोर्ट पढ़िए। मुआज़ इब्न जबल ने नहीं सोचा इनको अमीर अल्लाह के पैगंबर ने बनाया है, इनको इमाम अल्लाह के पैगंबर ने बनाया है, इनके पास कोई दलील होगी, हमें नहीं पहुंची ना पहुंचे, इनके पास कोई दलील नहीं। सैयदना मुआज़ कहते हैं दलील मेरे पास है, अल्लाह के पैगंबर का फरमान मेरे पास है, तो वजन मेरे पास ज्यादा है। अमीरों की इमामों की बातों का वजन रहता है जब तक अल्लाह के पैगंबर के बराबर रहे। जब अल्लाह के पैगंबर के रास्ते से हट जाए वजन नहीं रहता। सैयदना मुआज़ कहते ला अजलिसु हत्ता युक़तला क़ज़ाउल्लाहि व रसूलिही, कहते अल्लाह की कसम उस वक्त तक मुआज़ तेरे पास नहीं बैठेगा जब तक तुम अपना कानून खत्म करके मेरे पैगंबर की हदीस को नाफज नहीं कर देते। 3 दफा ये बहस हुई है, 3 दफा। सहीहुल बुखारी सलासा मर्रातिन, हवाले का जिम्मेदार हूं 3 दफा। और इनको इमाम किसने बनाया? मेरे महबूब पैगंबर ने बनाया। लेकिन बात टकरा गई, कहा नहीं हो सकता, मुआज़ इब्न जबल तेरे पास उस वक्त तक नहीं बैठेगा जब तू अपनी बात छोड़ के मेरे पैगंबर की हदीस को भारी नहीं कर देता। ये है मेरे महबूब पैगंबर की हदीस का वजन। सब मोहताज है मेरे पैगंबर की हदीस के वजन के लिए। अल्लाह के पैगंबर की हदीस से पाक किसी की मोहताज नहीं है। फयुक़तला, सहीहुल बुखारी में है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कत्ल कर दो। जो साथी थे उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से नीचे उतरे और उनके पास बैठे। ये सहाबा इकराम का मनहज था, ये अकीदा था, ये उनका ईमान था। इसलिए अल्लाह ने भी कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। किसी उम्मती एक पे सारे मजहब की बुनियाद खड़ी ना करो। ये मुकाम तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर को है, किसी सहाबी को भी नहीं। बात खत्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए इमाम हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको मुसल्ले पे मिंबर पे खड़े करने वाले कौन है? मेरे और आपके महबूब पैगंबर हैं। बाकी तो कोई यमन का इमाम था, कोई सबर का इमाम था, ये मेरे महबूब पैगंबर के मुसल्ले का इमाम है। एक बुढ़िया आई, उसने कहा मेरा पोता फौत हो गया है, उसकी विरासत में से मुझे क्या मिलेगा? कहा ला हज़्ज़ लकी, दादी को क्या मिलना है, तेरे लिए कोई नहीं है। 2 सहाबा खड़े हो गए, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने पिछले जुमे में अर्ज किया, सहाबा के इस मनज को अपने ज़हन नशीन कर लो। अगर एक एक उम्मतियों पे बात लेके जाओगे तो फिर तो झगड़े ही झगड़े हैं। कोई इधर से कहेगा मेरे इमाम की फ़िक़ाहत बड़ी थी, उसके पास इल्म बड़ा था, तकवा बड़ा था। कोई इधर से खड़ा होगा, फिर दीन खिलौना बन जाएगा। 2 सहाबा खड़े हो गए, उन्होंने नहीं सोचा जनाब अबू बकर सिद्दीक को इमाम अल्लाह के पैगंबर ने बनाया है। उनके पास कोई दलील होगी, कोई हदीस पहुंची होगी, नहीं। वो दोनों खड़े हो गए कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस हमारे पास है, वजन हमारे पास ज्यादा है। मुकाम अपनी जगह, अजमत अपनी जगह, सबकी अजमत को सलाम है। सब सहाबा की, सब इमामों की, सब मुहद्दिसीन की बातों को सलाम है अल्लाह की कसम। लेकिन किसी की बात अल्लाह के महबूब पैगंबर की बात से वजनी नहीं हो सकती। जो आपकी जात का वजन है वही आपकी बात का भी वजन है। खड़े हो गए, काबू बकर, अल्लाह के पैगंबर के पास एक दादी आई थी, आपने उसको 6ठा हिस्सा दिलवाया था कि दादी का विरासत में से 6ठा हिस्सा बनता है। कहा अच्छा, ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस है? कहा हाँ। दोनों सहाबा ने जब गवाही दी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फौरन कहने लगे, ए बुढ़िया, तुझे तेरे पोते की विरासत से 6ठा हिस्सा मिलेगा। बेशुमार इस तरह के दलाइल हैं
کہ صحابہ اکرام کسی صحابی کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہوتی تھی تو دوسرے صحابہ سے الجھ جاتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لانے والے. یہی قیامت تک کا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری امت کے کئی فرقے بن جائیں گے, سیدھے راستے پہ تو ایک ہی رہے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحاب اليوم, جس دین پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا دین اور مذہب ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کی ادائیں, آپ کے فرامین, آپ کی شان اور عظمت ہی بیان ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ